Everyone take out their copy, classwork copy. Quadrilateral. See. Uh, Now today we will start the exercise 8.1, 8.1, and question number 6. I want to repeat the question number 6 as little. My voice is not audible. Now okay. Now the voice is audible. Today I start the question 6 again, and I want to give you a easy solution. I want to give you an easy solution of question number 6 without proving, without. Now, क्वेश्चन नंबर 6 एवरीवन राइट. कल जो हमने किया था उसके अलावा एक और सोल्यूशन मुझे देना है. आई वांट टू गिव यू वन मोर सोल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 6. द डायगोनल AC of a parallelogram ABCD bisect means that there is a parallelogram ABCD. This is bisect. Show that it is given ABCD is a parallelogram. Angle 1 is equal to angle 2. We have to prove angle 3 is equal to angle 4. Clear? Or we say AC bisect angle C. Now the proof. Angle 1 is equal to angle 3. Angle 2 is equal to angle 4. Angle 1 is equal to angle 3 and angle 2 is equal to angle 4. Alternate angle. Clear? And angle 1 is equal to angle 2. This is given. So therefore, if the angle 1 is equal to 3, so angle 2 is equal to 3. Therefore, or hence, whatever, angle 2 is equal to 3. Thus or hence AB is equal to BC. हाँ, sorry, AB is equal to BC की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है मेरे को. Wait a moment. 2 is equal to 3. No. From here 1 is equal to 3 and 2 is equal to 4, and we know that angle 1 is equal to 2. This is equal to 2 and 2 is equal to 4 and 1 is equal to 3. So therefore angle 4 is equal to angle 3 or angle 3 is equal to angle 4. Angle 3 is equal to angle 4. Hence AC bisect angle C. This is the shortest solution. कल मैं इसको चेकआउट कर रहा था. जब वो तो मैंने सोचा था कि जब मैं इसको चेकआउट कर रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि मैं इसको प्रूव क्यों कर रहा हूँ. और अगर हम प्रूव करते हैं तो भी हम इससे CPCT कर सकते हैं. दैट सोल्यूशन इज ऑल्सो राइट, बट दिस इज ऑल्सो राइट. दिस इज द शॉर्टेस्ट सोल्यूशन. Angle 1 is equal to 3
angle 2 is equal to 4. We know that angle 1 is equal to 2 as given. So therefore angle 3 is equal to 4. Hence AC bisect angle C. Now proved first part. This is the first part proved. अब हम इसको प्रूव करेंगे कि ABCD is a rhombus. Now can I rub? उसको बाद उसको कंटिन्यू करेंगे और अब हमारा जो प्रूफ है दैट इज द सेकंड प्रूफ टू प्रूव ABCD is a rhombus. Rhombus. We know that angle. Now the proof is angle 2 is equal to angle 3 proved above. Proved above or proved above or proved in first part. So therefore AB is equal to AB is equal to BC. Similarly, uh, similarly बिल्कुल बिल्कुल वही चीज AD इज इक्वल टू CD. और अगर इसमें लिखना चाहते हैं तो हम ये लिख सकते हैं बिकॉज हाँ सिमिलरली AD हाँ व्हाट डू से AB is equal to BC. Similarly AD is equal to CD. This side is equal to this because angle 1 is equal to angle 4. AD is equal to BC. क्यों? वो तो हमें मालूम नहीं है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम सर. वाई बट वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है. AB इज इक्वल टू CD. नाउ सी दिस इज द एडजेसेंट साइड. AB इज इक्वल टू दिस and AD is equal to this. Two adjacent sides are equal. Or we know that ABCD is a parallelogram, so the opposite angles are equal. We know that. Okay, अगर तुम्हें लिखना है तो वो तुम लिखोगे नेक्स्ट इसके बाद. AB is equal to CD and AD is equal to BC. This is given. दिस इज गिवन ओनली. इसमें हमारे को सिमिलरली लिखने की जरूरत नहीं है. सिमिलरली हम उसके लिए लिखते हैं जो हम अदर देन गिवन लिख रहे हैं. यस यस. तो अब ये सारे अब इसमें हो गया. यस यस बोलो बोलो. हाँ बोलो मैं सुन रहा हूँ. अभी तो अभी तो प्रूफ किया ना मैंने इसके अंदर. अभी इससे पहले तो वही प्रूफ किया था. मैं दोबारा प्रूफ कर देता हूँ इसको. देखो हमने इसमें एंगल 1 इज इक्वल टू 2 इज गिवन. ओके एंगल 1. हाँ अरे जब एंगल 1 इज इक्वल टू 2 है, 2 इज इक्वल टू 4 है. 1 अभी वही तो तुम्हें बता रहा हूँ ना. एंगल 1 इज इक्वल टू 2 है और इससे पहले हमने प्रूव कर दिया 4 इज इक्वल टू 3 है. ठीक है तो ये हुआ नहीं क्या तुम्हारा 2 इज इक्वल टू 3 नहीं हुआ? इससे नहीं हुआ क्या? मेरे को ये मैं तुमसे पूछ रहा हूँ. एंड वी नो डैट ना एंगल 1 इज इक्वल टू 2 और उसके बाद एंगल 1 इज इक्वल टू 3 है. ये सब लिख तो दिया हमने इसमें. एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4. तो ये चीज हुआ या नहीं हुआ? ये जब ये एंगल 4 और 3 तो हमें प्रूव करना था उस चीज के लिए. अभी देखो एंगल 1 इज इक्वल टू 3, 4 इज इक्वल टू 2, 1 इज इक्वल टू 2 एंड 4 इज इक्वल टू 3. तो देयरफॉर 2 इज इक्वल टू 3 नहीं हुआ? हो गया या नहीं हुआ? ओके और ए बी इज इक्वल टू बी सी हुआ. इसके लिए हम लिख सकते हैं ये साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल. साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल. ठीक है ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं. उसके ब्याह पे हम इसको ले सकते हैं 2 इज इक्वल टू 3. वो ऑलरेडी हम लिख रहे हैं 1 इज इक्वल टू 2. ये तो लिखा ना हमने 1 इज इक्वल टू 3, 2 इज इक्वल टू 4 एंड 1 इज इक्वल टू 2 इज गिवन. इफ 1 इज इक्वल टू 2 इज गिवन सो 4 इज इक्वल टू 3. तो अब हम इसको लिख सकते हैं नेक्स्ट में 2 इज इक्वल टू 3 हो गया. यहाँ पर तो लिख ही रहे हैं हम ये सारी चीजें.
वो अपने प्रीवियस पोर्शन में लिख दिया, अब उसके लिए एक स्पेशल कोई क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। नाउ इट इज क्लियर और नॉट? यहां तक हो गया? सो देयरफॉर, तो ये मैंने कल मैंने तुम्हें बताया था, कल इन द प्रीवियस क्लास आई टोल्ड यू कि फर्स्ट यू कॉन्ग्रुएंट दिस, देन मेक अ अनदर डायगोनल एंड देन कॉन्ग्रुएंट द टू स्मॉलर एडजेसेंट ट्राइंगल एंड देन यू से दैट इट इज अ रोम्बस। मैंने वहां पर प्रूव किया था डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, और ये साइड को इक्वल बताया था, उसमें मैंने दो चीज प्रूव की थी। बट आज मैंने आज मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट किया है कि वी हैव टू प्रूव द, आवाज किसकी आ रही है? प्लीज म्यूट देयर वॉइस। किसके पास टीवी चल रहा है? एबीसीडी इज अ रोम्बस। तो इसके लिए एक शॉर्टेस्ट तरीका मैंने तुम्हें बताया कि इफ यू आर फीलिंग लिटिल डिफिकल्टी व्हाइल प्रूविंग, तो इसके लिए एक इजी तरीका है ये। अब इसमें एंगल 2 इज इक्वल टू 3 है, प्रूफ डेवलप हो गया अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पार्ट। नाउ बीसी ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी हो गया, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। सिमिलरली ए डी इज इक्वल टू दिस बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू 2। This is the given portion, therefore all sides are equal. Now therefore ABCD is a square, sorry, ABCD is a rhombus as all sides are equal. ऐसा नहीं मैंने बोला है कि जो मैंने कल बताया था दैट इज रॉन्ग, दैट इज ऑल्सो ट्रू। उसके अंदर मैंने दो चीजें प्रूफ की हैं, वन इज द अपोजिट साइड, सॉरी, वन इज द ऑल साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। दो चीजें मैंने एक साथ प्रूफ की है उसमें, दैट दैट सॉल्यूशन इज ऑल्सो राइट, बट दिस इज द शॉर्टेस्ट वे। मैथ्स में प्रूफ दैट है, इसके अंदर हम वी कैन फाइंड अ शॉर्टेस्ट वे टू शॉर्ट आउट आवर प्रॉब्लम। तो दिस इज एवरीवन कॉपीड? तो यू कैन यूज ईदर ऑफ द वे, नो प्रॉब्लम। तुमको आज जो बताया वो भी यूज कर सकते हो, और यू कैन यूज द यस्टरडेज सॉल्यूशन। जो तुम्हें समझ आया यू कैन यूज दैट सॉल्यूशन, नो प्रॉब्लम। बट यू हैव टू कॉपी दिस, कि हम क्वेश्चन नंबर 6 को दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, नाउ एवरीवन कॉपीड? Now see the question number 7. Read the anyone can read the question number 7. Madhav? Madhav? Mm-hmm. Mm-hmm. Hmm. सी, देखो वही चीज मैंने तुम्हें बताया ना। तो इसी क्वेश्चन को देखने के बाद मैंने अपना चेंज किया क्वेश्चन नंबर 6 को। आज मैं सुबह देख रहा था तो मैंने इसीलिए चेंज किया कि ये सॉल्यूशन तो इजी था, मैंने इसको कॉन्करेंट क्यों किया? कॉन्करेंट प्रूफ नहीं भी करते तो हो जाता। नाउ एबीसीडी इज अ रोम्बस, सपोज एबीसीडी इज अ रोम्बस and this is A, B, C and D. We can join AC and join AC as a diagonal by now in this, see, 2, 3 and 4. Given is what? ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus. शो डैट द डायगोनल। अब इसके अंदर हमारे को जो टू प्रूव करना है दैट इज टू प्रूव AC bisect angle A as well as angle C. Clear? Now see, ABCD is a rhombus. We can use all property of rhombus. तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की जरूरत नहीं है, अगर हम इसको चाहें तो ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके 1 इज इक्वल टू 2 एंड 4 इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं, बट उसकी जरूरत नहीं है। As rhombus is a parallelogram, the opposite angles are equal. हमें ये पता है, so it means that पहले हम इसको यूज करेंगे, we know that this is parallel, so angle 1 is equal to angle 3. और एक सेकेंड, इसको हम ऐसे करते हैं, पहले थोड़ा चेंज करते हैं इसका सोल्यूशन। ओके, नाउ वी नो दैट द AB is equal to AB is equal to BC, so angle 2 is equal to angle 3, angle opposite to equal side.
ठीक है, इतनी बात समझ में आई? यहां तक समझ आया? नाउ नाउ वी नो दैट व्हाट हैपन। मैं एक बार दोबारा बता देता हूं उसमें अनदर मेथड। नहीं, ये तो कोई मेथड इसमें यूज करना ही नहीं है, इसको प्रूव करना है। मैंने तो तुम्हें बताया कि दोनों ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट करके 1 और 2 को इक्वल कर सकता हूँ, 4 और 3 को इक्वल कर सकता हूँ, और उसके बाद लिख सकता हूँ कि AC बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। तो वो कॉन्ग्रुएंट मेथड हो गया, वो मेथड हमें यूज नहीं करना। मैं उसकी जगह पे कोई दूसरा मेथड यूज कर रहा हूँ, दैट इज मोर इजियर देन द कॉन्ग्रुएंट मेथड। इसके अंदर मुझे ये मालूम है कि वी नो दैट द ऑल साइड ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल, सो BC इज AB इज इक्वल टू BC। हमने स्टार्ट किया AB इज इक्वल टू BC, देन एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। अभी इसके बाद देखते जाओ ना, अभी थोड़ा सा समझना है इसके बाद। उसके बाद है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, या एंगल 3 ऐसे लिखते हैं, एंगल 3 इज इक्वल टू 1। तो एंगल 3 इज इक्वल टू 1, हेंस एंगल 1 इज इक्वल टू 2। यहाँ हो गया? यहाँ तक समझ आया नहीं आया? कौन है, सलोनी है कि शिवानी? शिवानी देखो, इसके अंदर मैंने यूज किया है रोम्बस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा हूं मैं इसके अंदर भी। इसके अंदर मैंने सबसे पहले लिखा AB इज इक्वल टू BC, देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। नाउ एंगल 3 इज इक्वल टू 1, दिस इज ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। उसके बाद लिखा हेंस एंगल 1 इज इक्वल टू 2। उसके बाद लिखूंगा यहां पर सिमिलरली, सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब इसके लिए मुझे कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है, अगर चाहो तो तुम लिख सकते हो हेंस, ये लिख सकते हो यहां पर हेंस में लिख सकते हो क्या कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 3। Similarly, angle 3 is equal to angle 4 because angle 2 is equal to angle 3. I proved here, and angle 2 is equal to angle 4 as an alternate angle. So angle 3 is equal to angle 4 is condition. अभी angle 1 जो है वो 2 के equal है, 4 जो है वो 3 के equal है. Therefore या hence whatever, therefore AC bisect angle A as well as एंगल C। कोई डाउट है यहाँ पर? अब वो बताओ जिसको कोई डाउट हो रहा है इसके अंदर। ये यहाँ पर ऐसे सॉल्यूशन है, देख लेना सभी। एनी डाउट सलोनी, शिवानी सॉरी, माधव माधवी, एनीवन हैज एनी डाउट? ठीक है, और उसके बाद जब इसका जो सेकंड पोर्शन, जो इसका सेकंड पोर्शन है, उसके लिए भी हम सिमिलरली लिख सकते हैं कि BD जिस तरह से हमने इसको लिखा है उस तरह से ये। उसके बाद इसको यहाँ ज्वाइन कर दो ऐसे करके, और यहाँ पे मार्किंग कर दो 4 5 6 7। और उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं कि उसके बाद हम लिख सकते हैं कि सिमिलरली या सिमिलरली मत लिखो, थोड़ा सा लिख दो उसके अंदर, एक चीज को प्रूव कर दो, उसके बाद सिमिलरली कर देते हैं। उसमें भी ऐसे ही लिख देंगे BC इज इक्वल टू DC, और एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 एज ऑल्टरनेट एंगल। और इसके लिए लिख देंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, सॉरी एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। ठीक है, सो एंगल 5 इज इक्वल टू, ये मैं लिखता हूं दोबारा से, इसको करता हूं तभी तुम समझोगे। इतना सबने कॉपी कर लिया? गुड। Now you can write little bit for the second portion. BC is equal to
CD. Therefore, angle 5 is equal to angle 6. Clear? Uh, Angle opposite to equal side. Angle opposite to equal side. And then you write angle 5 is equal to angle 7, alternate angle. There, hence, angle 6 is equal to angle 7. Similarly, angle 4 is equal to angle 5. Therefore, BD bisect angle B as well as angle C. ठीक है, सॉरी एंगल डी. ठीक है, तो ये दो बार एक ही चीज को लिखना है. बस इसमें हम एक फर्स्ट स्टेप एक चीज को प्रूव कर देंगे, दूसरे में हम सिमिलरली लिख लेंगे. और ये भी देखो, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करके हम 4 इज इक्वल टू 5 एंड 6 इज इक्वल टू 7 लिख सकते थे. नाउ क्लियर? Now Madhvi, read the question number 8. अब इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है. ABCD इज अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है ABCD. You can join the diagonal AC. ये भी इसमें यहाँ पर ये गिवन है कि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है. शो दैट ABCD इज अ स्क्वायर. तो अब इसका भी हमारे पास गिवन क्या है? ABCD इज अ रेक्टेंगल. उसके बाद एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? ये गिवन है इसके अंदर. तो जब इसके अंदर, और हमें प्रूफ क्या करना है इसको, तो प्रूफ फर्स्ट वी हैव टू प्रूव ABCD इज अ स्क्वायर. So first we have to prove the ABCD is a square. So the proof start. Angle A is equal to angle C. कोई यहाँ तक तो कोई confusion नहीं है? Good. So half of angle A is equal to half of angle C. Half of angle A is either 1 or 2, कोई सा भी ले सकते हैं. So angle 2 is equal to angle 3. Angle 2 is equal to angle 3. Therefore, AB is equal to BC. Side opposite to equal angle. साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल. अब मुझे ये बताओ कि ये, और वी नो डैट कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एज इट इज द रेक्टेंगल, तो वो हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं होती. नाउ अब हमने क्या ले लिया, इसमें नंबरिंग कर दी और ABCD से स्क्वायर अब प्रूव कर रहे हैं. सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C. वी नो दैट द एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एज इट इज ऑल एंगल्स आर इक्वल. तो हमने इसमें अपोजिट लिया, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C. हाफ ऑफ एंगल A इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C. सो एंगल 2 is equal to 3. So 2 is equal to 3. It means that the adjacent sides are equal. Side opposite to equal angle. Therefore ABC. अब इसके बाद मुझे ये लिखने की भी जरूरत नहीं है कि मैं इसको भी लिखूं.
बट इफ यू वांट तो तुम इसमें लिख सकते हो सिमिलरली AD इज इक्वल टू CD, और उसके बाद हम कह सकते हैं देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, ABCD इज अ स्क्वायर, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि वी नो दैट ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल इज ओके, कि डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे हैं ईच अदर, all opposite sides are equal and parallel. Now we proved the adjacent side are equal. If the adjacent sides are equal means that all the sides are equal. So ABCD is a square as all sides are equal. All sides are equal. Clear? Now the second part, join BD and mark the angles 4, 5, 6 and 7. Now the second part we have to prove BD bisect angle B as well as angle C. Angle 4 is equal to 6 and angle 5 is equal to 7. Alter, as well as angle D, okay. Now angle 4 is equal to angle 6, angle 5 is equal to 7. Alternate angle. Now angle B is equal to angle C. अब इसको लिख सकते हो, all sides are, all angles are equal, all, या given लिख सकते हो इसको, given. So half of angle B is equal to half of angle C. So angle half लेते हैं 5, 5 is equal to angle 6, and we know that angle 6 is equal to angle 4. So therefore or hence angle 4 is equal to angle 5. Clear? Hence angle 4 is equal to angle 5 and angle 6 is equal to angle 7. Therefore BD bisect angle B as well as angle D. Everyone practiced chapter 7. Can I means तो PT 6 का सिलेबस चैप्टर 7 दे दूं? PT 6 के लिए chapter 6 is okay. Sorry, chapter 7. Sorry, not 6, 7. Triangle. Or you want I can include chapter 10 also. 10 and 6 is okay. Sorry, 10 and 7 is okay, or only 7 is okay for the PT 6? हाँ ऑलरेडी तो दो बार कर लिया, एक बार मैंने किया और एक बार तूफान सर के साथ किया. So 10 and 7 is okay for the PT 6. क्लास में ये PT हो चुका ऑलरेडी.
10 का हो चुका है PT5. ओके. So okay, now the PT6 syllabus is chapter 7 only. Today I will send the syllabus in the group also, so you can take care about that. Chapter 7 is the PT6 syllabus. Okay, now this is clear. How much time is left? 4 minutes is left. Okay. So today's homework is only question number 9. But I want to discuss about this little bit. थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ, so it will be easy to solve you. Question number 9 is your homework. पहले 5 दिए हैं और आज एक 9 10. 10 is also your homework. Easy questions are not very difficult. So in the question number 9, both ABCD is a parallelogram. 2 point P and Q are taken as a diagonal such that DP is equal to DP is equal to BQ. Now you have to congruent APD with CQB. Okay, so CQD means angle, alternate angle, side is equal and opposite sides are equal. So you can prove this by SAS. Question number 9 first part. Question number question number 9 first part. Triangle APD is congruent to triangle CQB by SAS. Clear? SAS. Then SAS, because the opposite sides are equal, then angle is alternate angle and BQ is equal to PD or DP is given. DP angle, this is BCQ is equal to CBQ is equal to ADP, alternate angle. Means when you are forming like this, ये जो तुम्हारा parallelogram बन रहा है ऐसे, और ये यहाँ पर, और उसके बाद ये इस तरीके से ज्वाइन हो रहा है यहाँ पर इस तरह से, तो this angle is equal to this angle, alternate angle. Now AP is equal to CQ by CPCT, or I think it's easy. Question number 9 is easy. Question number 10, question number AP, and these are the perpendicular of this and this diagonal. This show that this is also very easy. ABCD is a parallelogram. So opposite side 90 degree and one angle alternate. You can in question number 10 you can prove this by AAS, angle side, and then AP is equal to CQ by CPCT. It's easy. You can solve 9 and 10. So you have to send the homework 1 to 5, 9 and 10. Clear? Exercise 8.8.1, question number 1 to question number 5, and then question number 9 and question number 10. Clear? इतने ही question, not 7. 7 तो मैंने करा दिया, 6, 7, 8 करा दिया. Don't include 7. 6, 7, 8 already मैंने करा दिया है. You have to send. अच्छा कल दिया था मैंने 7. अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है. 7 भेजना, तो मतलब ये क्वेश्चंस होने चाहिए मिनिमम. क्वेश्चन नंबर 1 to 5, क्वेश्चन नंबर 9 and 10.